But it is almost being seen inevitable. There is a mobilization which is happening of southern states. And interestingly, MK Stalin has taken the lead because the elections, of course, are in Tamil Nadu next year. So you may have to wait a little longer because ye election issues hi ban jate hain, emotive issues ban jate hain. Then why are we not seeing that kind of collaboration in your state? Why is there no collaboration between the chief minister and someone who is like you, who's leading a political party who was in power, say, till a year ago? Let me correct you on this. In fact, both the Chief Minister of Telangana, who is from Congress Party, and myself, both of us have actually taken the same stand in the meeting at Chennai. We have said the same thing. We said, population alone cannot be the basis for distribution of seats or delimitation. अगर delimitation की बात होती है, मैं हमारी पार्टी की तरफ से हमारा राय ये है कि the first port of call always in a democracy is mostly MLA, not MP. अगर delimitation ही करना है तो आप MLAs का संख्या बढ़ा दीजिए. अगर political parties and representative democracy में अगर each constituency has to be equally represented, you can increase the number of MLA seats. But MPs keep them proportionate to what they are right now. For example, out of 543, 17 belong to my state, 25 belong to Andhra Pradesh, 39 belong to Tamil Nadu. Together, South India has about 130 plus seats. What we are seeking is that this be kept intact, then the proportion be kept intact. If this does not happen, if Uttar Pradesh becomes that one state that can decide the next union government in India with a lopsided number, then I think the rest of the country will feel the pinch. The rest of the country will certainly voice the concern. And more importantly, I think centralization of policy, centralization of fiscal resources also is a huge, huge challenge. Because the more, the political parties start feeling that the Hindi belt will decide who's going to be the prime minister, then the entire focus, the entire concentration would be on making policies which suit the Hindi belt, and rest of India will be left in the lurch. But Mr. KTR, for last 10 years, when BRS was in power, you worked with the central government. Then at that time it was cooperative, now it has become coercive because you're an opposition. No, let me correct you. We have worked with union government on certain things, we have opposed them on a number of things. We have always been issue-based. It's not like we oppose everything that BJP says blindly because we have to oppose. No, ऐसा कुछ नहीं है. हम जब GST की कानून आई थी, तो उस बिल को हमने मदद की. जब रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बनाने की एक प्रपोजल आई थी, तो उसको सपोर्ट हमने की. अब जब फार्म बिल्स आए थे, फार्म लेजिस्लेशन आए थे, तो उसको अपोज हमने की. तो जहां इशू बेस्ड हमने एक ओपिनियन और एक हमारी स्टैंड रही है, बट वी हैव नॉट, इट्स नॉट लाइक वी आर पार्ट ऑफ NDA और इंडिया. So we've always been independent and we've never been subservient to anybody. But for 10 years, when you were the industries minister, you were dealing with the same Modi government at the center. Do you have a choice? Can I deal with any other government? वो तो भारत सरकार है, मैं एक छोटा राज्य का सरकार हूँ, तो मुझे तो फिर जाना ही पड़ेगा उनके साथ, तो काम भी करना पड़ेगा. Ultimately we are part of the larger nation. So as far as politics and economics are concerned, हमारा राय यही है कि politics को आखिरी 6 महीने तक सीमित रखना चाहिए और इकोनॉमिक्स शुड टेक सेंटर स्टेज फॉर 4.5 years और देश के हित में, राज्य के हित में हर किसी को काम करना चाहिए. KTR जी यहाँ पर हैं. हिंदी इम्पोजिशन क्या है? वो लार्जली पॉलिटिकल है. मुझे नहीं लगता कि कोई किसी पे कोई लैंग्वेज इम्पोज कर रहा है. You're 100% right, ये sir. पूरी तरह से पॉलिटिकल है. जो भी पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, उनका भी तो प्रोफेशन है. मैं छोड़ दूं अपना काम? ये प्रोफेशनल कंपल्जन है. नहीं, मैं आपको एक चीज कहता हूं, कमलेश जी, एक बात कहता हूं. भारत सरकार जब 50 करोड़ रुपया बजट में रखती है कि हिंदी को प्रमोट करना है पूरे भारत में, और जब एक पैसा भी नहीं देती है तेलुगु को प्रमोट करने के लिए, बांग्ला को प्रमोट करने के लिए, मैं क्या समझूं उसको? हिंदी इंपोजिशन तो नहीं कहूंगा, बट हिंदी को प्रमोट तो कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं प्रमोशन हो रहा है, पर मसला वो नहीं है, समस्या वो नहीं है. मैं यहां पे बैठ के आज हिंदी में आपसे मैं एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू कन्वर्स इन हिंदी एज टू माई बेस्ट एबिलिटी. मुझे किसी ने जबरदस्ती की क्या कि आप हिंदी सीखो? नहीं. पर अगर कल कोई ये कहेगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, और हर राज्य में कल अगर आपको CRPF में आना है, या भारत को कोई किसी को आर्मी में आना है, या कोई रेलवेज में काम होना है, तो आपको हिंदी में परीक्षा लिखना पड़े, तो ये तो गलत है. क्योंकि जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है, क्योंकि भारत का तो कोई राष्ट्रीय भाषा है नहीं. India has no national language. India has 22 official languages, 300 unofficial languages, some languages which do not even have a script. So all I'm saying is, I'm not going to enforce Telugu on you. Why are you enforcing or imposing Hindi on me? Leave it to the country, leave it to the people of this country. Why are we imposing
ourselves on each other. Hindi imposition, see for example, if Tamil Nadu feels very strongly or Karnataka feels very strongly or even Maharashtra feels very strongly or Telangana feels very strongly that Hindi should not be imposed, so be it. See, Prime Minister P.V. Narasimha Rao was able to converse in 16 languages including French, German and Spanish. So my point is, it is the individual's appetite, it is the individual's interest that should dictate. And also, Kamlesh ji, language is not just political issue. Language is not just a communication tool. Language is also cultural identity. Remember that. See, in fact, the beauty of India is unity in diversity. भी हम लोग बार-बार कहते रहते हैं. अगर आप हिंदी को impose करोगे, हिंदी को जबरदस्ती साउथ में या कहीं और impose करने की कोशिश करोगे, you are undermining the very idea of this diversity. You are undermining the authority of this country, which is based on our beautiful diversity. क्यों करना है जबरदस्ती किसी के साथ? तो राज ठाकरे को क्या बोलेंगे? सॉरी, राज ठाकरे को क्या बोलेंगे जो अभी हो रहा है? मैं राज ठाकरे को भी यही कहूंगा कि जैसा आप हिंदी इंपोजिशन नहीं चाहते हो वैसे ही आप मराठी इंपोज भी ना करो. मराठी भी आप किसी के ऊपर जबरदस्ती ना इंपोज करने की कोशिश करो. आप ये क्यों कहते हो कि आपको मुंबई में रहने के लिए आपको मराठी बोलना पड़ेगा या हैदराबाद में रहने के लिए तेलुगु बोलना पड़ेगा? हाँ, मैं ये बात तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको मुंबई में रहना है, लोकल्स के साथ मिंगल करना है, तो सीख लो, तो 2-4 शब्द मराठी के सीख लो, तो गलत तो है नहीं. रिस्पेक्ट द लोकल कल्चर, रिस्पेक्ट द लोकल लैंग्वेज. नहीं, लेकिन वो डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हुआ. अगर हम अपना घर छोड़ करके आ करके आपके यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो हम तो आपको आपकी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. मैं आपको यस बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि all the migrant workers are partners of our state development. There's no question. In fact, our chief minister in 2020, Sri KCR, had mentioned this word that you are partners of my state development, and he is the only chief minister in India who had organized special trains free of cost. 500 रुपया हर किसी को दिया, खाना दिया और उनको ढंग से मर्यादा के साथ वापस उनके राज को भेजा. पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जब हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने यूके और यूएस, आप क्या कहोगे? वहां पे अंग्रेजी नहीं सीखना है उनको, अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, वहां की लोकल कल्चर को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से चलना पड़ेगा. अगर आपके बच्चे कोई जाते हैं रशिया मेडिसिन पढ़ने या फिलीपीन जाते हैं, तो क्या कौन सी भाषा में उनकी आज ट्रेनिंग होती है? रशिया में होती है, रशियन में होती है. हमारे बच्चे जो चीन जाते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं, चीन में मैंडरीन सीख के आज वहां पे मेडिसिन पढ़ते हैं, रशियन में पढ़ते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को तेलुगु सीखना पड़ेगा या तमिल सीखना पड़ेगा या कोई और सीखना पड़ेगा, पर क्या तकलीफ है आपको 2-4 अगर लाइन, जैसे मैं हिंदी सीखा हूं, मेरी नेटिव तेलुगु है, मदर टंग मेरी तेलुगु है, पर मैं हिंदी सीख के आपसे बात कर सकता हूं. आप क्यों नहीं कोशिश करोगे 4 लाइन तेलुगु सीखने की अगर तेलंगाना में रहना है? क्या गलत है उसमें? हाय सर, आप कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज की बात करते हैं जिसमें आपने कहा कि मैं इंग्लिश के सबटाइटल देखता हूं, और इंडिया की कोई कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्यों नहीं होनी चाहिए? जैसे कि आजकल है, हिंदी है, आप भी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, इवन साउथ के ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, और यहाँ के स्थानीय लोग भी काफ़ी हिंदी की पकड़ रखते हैं. तो आप क्यों नहीं हिंदी को ऐसे कहें कि ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज हो सकती है? इसमें क्या है? और फिर आप एग्जाम्पल देते हैं कि कोई कह रहा है कि ये लैंग्वेज हिंदी का हो, आप दूसरे कंट्री का एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ इंग्लिश सीखनी पड़ती है, वो सीखनी पड़ती है, फिर उसका आप यहाँ का एक एग्जाम्पल बना के देते हैं कि क्यों नहीं सीखनी चाहिए. तो ऐसे अजीब एग्जाम्पल क्यों देते हो सर? क्यों ये सिमिलर चीज़ें क्यों नहीं? क्यों? मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा, जैसे आप अगर कहोगे कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, मैं अगर प्रपोज करूं, नहीं सेम चीज, मैं अगर प्रपोज करूं कि कोई और भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, सॉरी, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड ब्रदर. इंग्लिश ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में बोला जाता है. वेदर यू लाइक इट और नॉट, इफ यू लर्न इंग्लिश देन यू कैन लिव अक्रॉस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जनाब, हाँ, तो आप अगर हिंदी सीख के अगर आप अमेरिका जाओगे, कैसे वहां पे जी पाओगे आप? ये बताओ मुझे. हिंदी सीख के कल आप नौकरी के लिए अगर इंग्लैंड चले गए, वहां क्या करोगे फिर आप? आपके लिए लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है. इसीलिए अंग्रेजी माध्यम भी एक चीज होता है जिसको आज इतना बढ़ावा मिलता है पेरेंट्स की तरफ से और हिंदुस्तान के जनता की तरफ से. अगर कोई नौकरी ढूंढने जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर लेवल पर है, क्लास है, तो वो सीखने की उनकी ख्वाहिश होगी तो वो सीख लेंगे, लेकिन इस तरह की जबरदस्ती करना सही है?
100% लॉ गलत एंड है, ऑर्डर का सिचुएशन बनाना सही है? 100% गलत है, मैं उसका सख्त मुखालिफत कर रहा हूँ और 100% रॉन्ग है, ये भी कह रहा हूँ, कानून को लागू होना चाहिए एंड whoever indulges in this kind of petty politics is wrong.